Hello everyone. Today we discuss some problems related on this formula. Tan inverse A plus tan inverse B equal to tan inverse A plus B upon 1 minus AB. Look here, tan inverse A and tan inverse B, two distinct values or anything else. Then the formula here, tan inverse A plus B, sum of both the terms and upon 1 minus AB. Let's discuss some problems related with formulas. Okay, here we have a question. Prove that tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3 equal to pi by 4. Just we want to prove the sum of both these terms equal to pi by 4. Okay, we use this formula. This is A and this is B. By using this formula tan inverse solution, तो ये आपका LHS के फॉर्म में हो गया tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3. Applying this formula we get tan inverse A plus B. Tan inverse A plus B, 1 by 2 plus 1 by 3. Here this one considered as A and this one as B. So we have tan inverse A plus B upon 1 minus A into B. 1 minus A into B. And it reduces to tan inverse 2 and 3 का LCM हो गया ये आपका 6, 3 plus 2 and this one 3 to 6, 6 minus 1 and upon ये आपका हो गया 6. तो आप इसको लिख सकते हैं tan inverse 3 plus 2 5 upon 6 and 6 minus 1 5 upon 6. And you can write here tan inverse 1 and you already know about it. tan inverse 1 का वैल्यू कितना होता है पाई बाय 4. तो tan inverse 1 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है पाई बाय 4. तो यही आपका क्या हो गया, प्रूव करना था इक्वल टू RHS. सो वंस अगेन वी हैव प्रूव दैट tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3 equal to pi by 4 by using this formula. This one A, this one B. तो ये आप A, ये आपका B. tan inverse A plus B upon 1 minus AB. 1 minus A into B. By solving we get tan inverse 1 and we know tan 45 का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है. Let's discuss on second question. We have tan inverse x plus tan inverse 1 by x equal to pi by 2. Just we want to prove here tan inverse x plus tan inverse 1 by x equal to pi by 2. Okay, let's start this one. LHS tan inverse x plus tan inverse 1 by x. By using this formula, this is one A, this one B. tan inverse A plus B upon 1 minus AB. ये आपका हो जाएगा tan inverse A plus B, x plus 1 by x and 1 minus A into B. This one x into 1 by x and it reduces to आपका ये हो गया आपका tan inverse, ये आपका x plus 1 by x and x into x कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 minus 1 and it reduces to tan inverse x plus 1 by x upon 0 and as we know something upon 0 equal to infinity. Tan inverse infinity and we already know about it. Tan inverse infinity it means pi by 2. tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है इन्फिनिटी होता है. तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल pi by 2 लिख सकते हैं. ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया. यही आपको RHS में प्रूव्ड करना था इक्वल टू RHS. Okay, now we have now 3 terms. Then what will we do? Have a look here. Tan inverse 2 by 5 plus tan inverse 1 by 3 plus
tan inverse 1/12 equal to pi by 4. Okay, just we want to prove tan inverse 2/5, tan inverse 1/3, tan inverse 1/12 equal to pi by 4. हम लोग अब इसको क्या करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं कि इसका वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, pi by 4 हो जाएगा. तो यहाँ पर आपके पास we have 3 terms here. Now we have 3 terms. Okay, let's start. At first we solve with these two terms. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपके पास यहाँ पर 3 टर्म है, तो सबसे पहले हम किसी 2 टर्म को जोड़ते हैं. छोटा सा एग्जांपल समझिए, यदि आपके पास 2 + 3 + 5 + 8 होता है तो आप क्या करते हैं, एक साथ सारे को ऐड बिल्कुल भी नहीं कर सकते. सबसे पहले आप इस दोनों को ऐड करते हैं, 5 फिर +5 फिर इस तरह से 1 by 1. At first here we take first 2 term, tan inverse 2/5, tan inverse 1/3 प्लस tan inverse 1/12. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस 2 टर्म पर इस पर हम फार्मूला यूज करते हैं. तो ये आपका हो जाता है tan inverse a + b upon 1 - ab. तो ये आपका क्या हो गया, tan inverse a + b 2/5 प्लस 1/3 upon 1 - 2/5 into 1/3. और ये हो गया आपका, ये आपका यूं ही tan inverse 1/12, ये आपका यूं ही रह गया. यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा tan inverse, ये देखिए 5 + 3 का एलसीएम कितना हो जाता है, 5 + 3 का एलसीएम हो गया 15. ओके, दिस वन बिकम्स 15 and 5 into 3 6 and 3 + 5 11. और ये आपका हो गया 15 - 2 13/15. और ये प्लस tan inverse 1/12. यदि हम इसको फाइनली लिख पाए तो ये आपको कितना लिख सकते हैं, बोलिए tan inverse हम इसको फाइनली लिख सकते हैं, ये 15 और 15 ये क्या हो गया आपका, ये आपका कैंसिल हो गया 11/13. ये आपका हो गया tan inverse 11/13 प्लस ये tan inverse 1/12, tan inverse 1/12. अब हम फिर से इस पर फार्मूला लगाते हैं, tan inverse a और tan inverse b का यदि हम फार्मूला लगाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, tan inverse फिर से a + b 11/13 प्लस 1/12 and 1 - 11/13 into 1/12. बिल्कुल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका tan inverse 1 आ जाएगा. हम इसको जब सॉल्व करेंगे बिल्कुल ये आपका सॉल्व करने पर tan inverse 1 आ जाएगा और tan inverse 1 का वैल्यू बिल्कुल हम लोग क्लियरली रूप से pi/4 लिख सकते हैं. तो हमारे पास यदि 2 से ज़्यादा टर्म हो सके, 3 टर्म रहे या फिर 4 टर्म रहे, एट फर्स्ट हम 2 पर ही फार्मूला लगाएंगे. सपोज कर लेते हैं यदि आपके पास 4 टर्म होता, tan inverse a प्लस tan inverse b प्लस tan inverse c प्लस tan inverse d. और देखिए यदि आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होता तो आप क्या करते हैं, हम एट फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इस दोनों पर फार्मूला लगाते हैं और इस दोनों पर फार्मूला लगाते हैं. तो tan inverse ये आपका फार्मूला एक फॉर्म में आ जाता है और फिर से ये आपका दूसरा टर्म tan inverse इतने पे आ जाता है. तो फिर से इस पर फार्मूला लगाते हैं, लेकिन कितना भी टर्म क्यों ना आपको 2 पर ही फार्मूला यूज करना है. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था 3 टर्म वाला. हम एट फर्स्ट क्या किए, हम इस 2 पर फार्मूला लगाए और सॉल्व किए तो ये फिर आपका इतना आया 11/13. और ये आपका रिमाइनिंग टर्म चलता आ रहा था इतना इतना और इतना. अब फाइनली फिर से इस पर फार्मूला लगा दिए तो ये फिर tan inverse 1 और बिल्कुल ये आपका pi/4 आया. Okay, let's have another question. Sin inverse 5/13 plus cos inverse 3/5 equal to tan inverse 93/60. आपके पास यहाँ 3 टर्म है जिसको आपको tan inverse में प्रूफ करना है. एक छोटी सी बात है, आपके पास ना ही कोई इस तरह का फॉर्मूला है कि sin inverse plus cos inverse वाले में कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर cos inverse tan inverse. जब भी फॉर्मूला है तो आपके पास फॉर्मूला होता है sin inverse x plus sin inverse y का.
या फिर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। मतलब ये दोनों टर्म एक ही सेम होना चाहिए, या तो साइन में दोनों टर्म हो, या तो फिर दोनों टर्म cos में हो, या फिर दोनों टर्म tan में हो, तभी हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बिल्कुल रूल है, जब भी आपके पास क्वेश्चंस में एक ही क्वेश्चंस में साइन भी रहे या फिर cos भी रहे या फिर tan भी रहे, अलग अलग टर्म रहे, तो बिल्कुल छोटा सा रूल होगा कि आप सारे टर्म को tan में बदल देंगे। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। यदि एक ही क्वेश्चंस में आपके पास अलग अलग टर्म रहे, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज रहे, साइन भी रहे, cos भी रहे, तो आप सारे को क्या करेंगे, tan में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए हम सबसे पहले इसको tan में कन्वर्ट करते हैं, तब उसके बाद हम फार्मूला यही वाला लगाएंगे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। एट फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को हम tan में बदल देते हैं। लेट तो ये आपका क्या हो गया, sin थीटा इक्वल टू 5/13। बिल्कुल आप फिगर से समझ सकते हैं कि हम इसको यदि tan थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम sin थीटा के लिए sin थीटा इक्वल टू p/h, तो ये आपका कितना हो गया, 5 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 30 हो गया। और जब हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो 169 माइनस 225, 169 माइनस 25, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 144, तो ये आपका कितना वैल्यू आ जाएगा, 12। और हमको पता है ना, हम इसमें किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम इस सारे को tan में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम इसको tan में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ से बताइए आप tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 5/12, और ये थीटा बराबर tan इनवर्स 5/, बिल्कुल आपका ये आपका। इसी तरह आप इस टर्म को भी कन्वर्ट करेंगे, क्या ये आपका है cos इनवर्स 3/5, इसको भी आप सपोज कर लें, लेट cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू कितना हो गया, थीटा। आप इस cos थीटा इक्वल टू आपको पता है बिल्कुल 3/5 इक्वल टू ये कितना हो गया आपका cos थीटा, 3/5 इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका cos थीटा हो गया। बिल्कुल हम इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिगर के द्वारा देखिए, इस पर फिगर बनाते हैं, और यहाँ पर हम इसको यदि थीटा कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये जाता है b/h, ये आपका 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम बट इसमें भी tan थीटा कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका 4/3, और थीटा इक्वल टू यहाँ से आपका कितना हो गया, tan इनवर्स 4/, ये जो आपका क्वेश्चन कुछ देर पहले sin इनवर्स 5/13 और cos इनवर्स 3/5 था, एक्चुअली में ये बन गया आपका tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। बिल्कुल ये जो आपका क्वेश्चन था देखिए, और अब ये आपका क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया ना, ये जो आपका क्वेश्चन फिलहाल था sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5, ये आपका था cos इनवर्स 3/5, तो ये आपका टर्म टोटली चेंज होकर के आपका हो गया tan इनवर्स 5/12, हम tan इनवर्स 5/13 को किसमें बदल करके लिखे, tan इनवर्स 5/12, और प्लस cos इनवर्स 3/5 जो था वो हो गया tan इनवर्स 4/3, ये आपका हो गया tan इनवर्स 4/3। और फिर से हमारे पास वही फार्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, फिर से हमारे पास वही फार्मूला आ गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, तो हम यूज करके क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a प्लस b 5/12 प्लस 4/3, और अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। बिल्कुल यही आपका क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया, आप इसको यूज कर लेंगे और ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 93/160। सॉल्व करके ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, देखिए ये एलसीएम हो गया इसका 12, और ये 5 और प्लस 16, तो आप बिल्कुल इसको सॉल्व जब करेंगे तो वो आपका सॉल्यूशन शायद इतना आना चाहिए, तो ये आपका इस तरह से आरएचएस प्रूव हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर से एक छोटा सा रूल आपके पास क्या आया कि जब भी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस हो, एक ही क्वेश्चंस में अलग अलग टर्म रहे, हम रूल में से क्या करेंगे, एट फर्स्ट चेंज ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इन